Hi friends, this is Prasanna Ambekar. I welcome you all in e-learning Katta, a platform which help you out to learn so many things which will going to help you out in your routine life, in your daily life, in your career and everywhere. This is the virtual Katta, the virtual learning platform. Nowadays, it's very much required so as to learn the things which we could have been learned through classes, the physical classes by presenting, by being there physically. But the pandemic situation arrived in entire world has stopped everything, and it is forcefully asked us to change the learning pattern. So me along with Learning Katta here going to present the series of learning sessions one by one. The learning session, it will cover the things which normally everyone requires so as to be successful in your life, so as to be positive in your life, so as to be on the top. Yes, on the top, I mean to say the things which you desire and deserve. The deserve word matters a lot. Well, I have a desire to be a Prime Minister of India. I have a desire to be a great cricketer of Indian team. I have a desire to be a leader. But whether I really deserve that? Yes. So I always use the terminology, may you get the things which you desire and deserve. This learning session will going to be, as I said, in a series, and the language which I would going to use will be Hindi, English and Marathi. The combination of Hindi and English, that is nowadays called as English, not English. Let me repeat, it's a English, Hindi and English. Also the Marathi. मराठी याच्याकरता मराठी आपली मातृभूमी आहे, महाराष्ट्र आपली मातृभूमी आहे, मराठी आपली मातृभाषा आहे आणि आपल्या सगळ्यांना मराठी येणं जरुरी आहे. समझणं आणि वाचणं आणि बोलणं जरुरी आहे. नंबर वन. हिंदी इसलिए, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है. सो हम सबको हिंदी समझनी ही चाहिए, आनी ही चाहिए और हमें उसमें कम्युनिकेट करते आना ही चाहिए. एंड इंग्लिश ऑफ कोर्स इट्स एन इंटरनेशनल लैंग्वेज टू कम्युनिकेट. When you are going to be a corporate man, a corporate woman, a corporate person, English communication matters a lot. I would not say it can be a barrier, but yes, it's a mandatory thing which everyone should and must know about English language, that I should communicate in English. So what is communication? Basically, conveying the message which I want to give in exact way and getting the desired output. Yes, जो हम कम्युनिकेशन क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन वो होता है जो हम बताना चाहते हैं और एग्जैक्टली जो हम चाहते हैं उसका आंसर वो मिले. अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि आपका नाम क्या है और आपने आंसर नहीं दिया, सो इज इट अ कम्युनिकेशन? इज इट अ क्लोज कम्युनिकेशन? नो, इट्स नॉट. until and unless until and unless I don't get the desired output from the question or the communication which I started, it would not be considered as a closed communication. So communication का मतलब वही होता है, अगर हमें किसी से कुछ बात पूरी करनी है, पूछनी है, तो उसका हमें चाहिए वो आन्सर मिल जाए. जे मला हवं ते उत्तर मिळालं तर त्याला कम्युनिकेशन म्हणता येईल. तर आज मी इथे आलेलो आहे आपल्याशी कम्युनिकेट करायला. आय एम हिअर टू कम्युनिकेट विथ ऑल ऑफ यू. Someone told me from the group that yes, he has started this activity so as to make aware the youngsters that whatever they are expecting to do, whatever they are supposed to do, and whatever they are willing to do, it should be done in a right direction so as to get the best output of their efforts. And for that, everyone needs a proper guidance. Yes, everyone needs a proper guidance. I repeat. So what we will going to do? हम यही करने वाले हैं कि आज से हम लोग जो सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन और सीरीज ऑफ गाइडेंस बोल सकते हो आप इसे,
जो हम शुरू करने वाले हैं वो हर दिन कम से कम 7-8 मिनट का कम्युनिकेशन का एक वीडियो रहेगा। हर दिन बोलो या हर हफ्ते बोलो, जैसे हम ये करेंगे। बिकॉज ऑफ पैंडेमिक सिचुएशन वी आर ऑल्सो लॉकडाउन, वी वर also locked down in our home, and now our offices have been started, our companies being started, has been started, and we have to give our extra efforts. Okay, so as the time permits, we'll definitely share the video as this mission is begun, and it will not going to stop anymore for any reason. Till my last breath, I assure you that I will going to share the videos, whatever are going to beneficial, give a benefit to all of you. सो आज का जो वीडियो हम बताना चाहेंगे, आज का हम शुरू करना चाहेंगे बाउंस बैक एंड विन। यस माय डियर फ्रेंड्स, बाउंस बैक एंड विन मतलब अगर हम कहीं गिरते हैं, पड़ते हैं, तो हमें संभलना है, उठना है और जीतना है। हमें जीतने के लिए उठना है, सिर्फ उठना नहीं है, हमें जीतने के लिए उठना है। अदरवाइज अगर हम गिर गए, कोई गेंद अगर नीचे गिरी है, जब तक वो उछलेगी नहीं तो ऊपर वो नहीं उठेगी, तब तक उसका जो चाहिए वो रिजल्ट नहीं आएगा। इन सेम वे हम लोग भी गिरने के लिए नहीं बने हैं, हम संभलने के लिए, उठने के लिए, चलने के लिए, दौड़ने के लिए और हमें जो चाहिए वो मंजिल हासिल करने के लिए हम बने हुए हैं। तो बाउंस बैक एंड विन, इसमें मैं आपको कई सारे एग्जाम्पल्स दूंगा, कई सारी सिचुएशंस बताऊंगा। शायद हो सकता है इन सिचुएशन को आप अपने आप से कोरिलेट करें, शायद हो सकता है इस सिचुएशन में आप अपने आप को स्टडी करें, ढालें और अपने आप को इसमें से बाहर निकल के उस बंदे को बाहर लाए जो आप में छुपा हुआ है। यस माय डियर फ्रेंड्स, everyone, I believe each and every person in a life or in a world is here for some specific task. हर एक में वो क्वालिटी है, कैपेसिटी है एंड कैपेबिलिटी है कुछ अच्छा करने की। यस, कुछ अच्छा करने की, जिसके लिए हर एक बंदा एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक या यूनिक क्वालिटी लेके दुनिया में आया हुआ है। राइट? कई लोग बोलते हैं मैं भी एक मोटिवेशनल ट्रेनर हूँ, मैंने कई बार मोटिवेशनल ट्रेनिंग दिए हुए हैं। मैंने अभी तक अगर देखा है तो करीब 5 से 10 हज़ार लोगों को ट्रेनिंग दिया होगा। कई सारी कंपनियों में मैंने ट्रेनिंग दिए, कई सारे मैंने क्लासेस लिए, कई सारे को मैं खुद एक मेंटर बोल के काम करता हूँ, कुछ लोगों के साथ, कुछ लोगों के लिए। मैं HR प्रोफेशनल हूँ, आई एम हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ अबाउट 25 ईयर्स इन HR। एंड जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, जो फ्रेशर्स होते हैं HR में, वो पूछते हैं सर ये कैसे करना, वो कैसे करना, हाउ टू डील विद दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। सो आई यूज टू गाइड बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव शेयरिंग और अ नॉलेज विल गोइंग टू हेल्प यू टू इम्प्रूव योर नॉलेज, नंबर 1। नंबर 2, चर्निंग होता है और कई बार आज ऐसी सिचुएशन है कि जो यंगस्टर्स हैं उनसे भी हमें कई सारी बातें सीखने को मिलती हैं। यस, एंड आई बिलीव फॉर लर्निंग देयर इज नो एज बार। सो हमारे स्किल्स हमें अपग्रेड करने के लिए, अपडेट करने के लिए रेगुलर हमें इंटरेक्शन करना होता है और हमें हमेशा कुछ ना कुछ देना पड़ता है और हम देते रहते हैं। तो कई लोग मुझे एज ए मेंटर भी यूज़ करते हैं, समझते हैं। कई लोग मुझे एज ए फ्रीलांस ट्रेनर भी यूज़ करते हैं, समझते हैं। कई लोग मुझे मोटिवेटर बोलते हैं, कई लोग मुझे सॉफ्ट स्किल डेवलपर बोलते हैं। कई सारी बातें मैं करता आ रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा बिकॉज इट्स माई पैशन। आई एम हेडिंग एन HR डिपार्टमेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन इन पुणे, रांजनगांव MIDC, holding an experience of about 25 years under my belt. But yes, it's my passion to train the people or to guide the people to reach to their destination. And on this note, we'll start our regular activities of learning session by the topic bounce back and win. Bounce back and win means अगर हम गिरते भी है तो उठिए, संभलिए, आगे बढ़िए और जीतिए। रुकना नहीं है, थकना नहीं है, हारना नहीं है, उठना है, चलना है, भागना है। माय डियर फ्रेंड्स, I strongly believe each and every person in the universe has a unique quality, as I said earlier. अगर मैं गलत नहीं हूं तो हम में से कई सारे लोग हनुमान जी को जानते हैं। राइट? हनुमान जी को हम सब लोग जानते हैं। हनुमान जी में क्या यूनिक क्वालिटी थी? हनुमान जी की यूनिक क्वालिटी ये थी कि वो अगर सोचे तो एक सांस में, एक लांघने में पूरे समुद्र पार कर सकते थे। राइट? और हमने रामायण में सुना भी है, देखा भी है। बट जब रामायण में युद्ध हुआ
और सीता माता का पता लगाना था, तब सब लोग निराश होकर बैठे थे, क्योंकि सीता माता 7 समुंदर पार लंका में बैठी हुई थी। रावण ने जिन्होंने सीता माता का अपहरण किया था और वहाँ अशोक वाटिका में रखा था, और उनके तक ये उनकी हालत कैसी है या लंका कैसी है सब पता लगाने के लिए कोई तो चाहिए था जो वहाँ जाके आ सके। अब कौन था ऐसा बंदा पूरी राम की सेना में? जाम्बुवन थे, अंगद थे, राम जी थे, खुद लक्ष्मण जी थे, हनुमान जी थे, ऐसे कई सारे योद्धा, वीर योद्धा थे। सब लोग निराश बैठे थे। राम जी निराश बैठे हैं, राम भक्त हनुमान जी हाथ जोड़ के बैठ गए, वो भी निराश। सब लोगों ने जब इधर उधर देखा, तब जाम्बुवन जी हनुमान जी के पास गए। उन्होंने कहा, हनुमंत, आप क्यों शांत बैठे हो? किस बात की चिंता है तुम्हें? हनुमान जी ने कहा, प्रभु, जिन्हें मैं अपना सब कुछ मानता हूं, वो मेरे प्रभु रामचंद्र, वो भी निराशा में हैं, वो भी चिंता में हैं, तो मैं कैसे खुश रह सकता हूं? तो जाम्बुवन जी ने उन्हें कहा, हनुमंत, इस पूरे विश्व में, इस पूरे ब्रह्मांड में अगर राम जी की समस्या का कोई हल कर सकता है तो आप हो। कैसे? हनुमान जी ने अचरज से पूछा, कैसे? तब उन्होंने उनको उनकी शक्तियों का एहसास दिलाया जो कि वो भूल चुके थे। उन्हें श्राप था कि आप अपनी शक्तियां पूरी तरह से भूल जाओगे, और जब तक आपको अपनी असीम शक्तियों का कोई याद नहीं दिलाएगा, कोई आठवण करून देणार नहीं, तब तक आप उस शक्ति के यूज इस्तेमाल कर नहीं पाओगे। क्योंकि हम सबको पता है, बचपन में हनुमान जी ने सूर्य भगवान को पाने के लिए एक लंबी छलांग लगाई थी, और अगर सूर्य भगवान तब हनुमान जी के हाथ में आ जाते या हो जाता कुछ, तो शायद इस पृथ्वी का विनाश हो जाता। इसलिए उन्हें, ये मिथ है, कहानी है, सच्चाई है, पता नहीं, बट इसमें से हमें अच्छा ही लेना है। ओके, सो कई लोग इससे एग्री करेंगे, कई लोग नहीं करेंगे, बट फिर भी अगर इसमें से कुछ अच्छा मिल रहा है तो वी शुड एंड वी मस्ट एक्सेप्ट दैट, राइट? कई सारी बातें हमें हमारे मोटिवेट करने के लिए बताई जाती है। तो हनुमान जी को शायद इंद्र ने वज्र मारा, और वज्र का प्रहार से हनुमान जी बेहोश होकर नीचे गिर गए, और उन्हें श्राप दिया गया कि आप अपनी शक्तियां भूल जाओगे। जब तक कोई आपको याद नहीं दिलाएगा, तब तक आप आगे इस शक्तियों का कभी इस्तेमाल कर नहीं पाओगे। जब हनुमान जी को समुद्र के इस पार बैठे हुए थे, तब जाम्बुवन जी ने जब उनकी शक्तियों को याद कराया, तब हनुमान जी जागृत हुए। उनकी इंटरनल पावर, उनके अंदर की जो शक्तियां है वो जागृत हुई, और वो जागृत होने के बाद उन्होंने श्रीलंका में जाके, जब उस वक्त का लंका थी, वहां जाके सीता माता का पता लगाया, लंका दहन किया, और कई सारी बातें की उन्होंने जो हम रामायण में पढ़ चुके हैं। तो मेरा कहने का मतलब को रामायण महाभारत बताने का नहीं है, मेरे कहने का मतलब यही है, यस यस माय डियर फ्रेंड्स, हर एक में वो हनुमंत छुपा होता है, हर एक में वो हनुमान जैसी क्वालिटी छुपी होती है, लेकिन उस हनुमान की छुपी हुई क्वालिटी को याद दिलाने के लिए एक जाम्बुवन की जरूरत होती है। और वो जाम्बुवन जिन्हें मिल गया, जिन्होंने उसकी मोटिवेशन करा दी, जिन्होंने उनको उनकी शक्तियों की एहसास दिला दिया, जानकारी दे दी कि आप क्या कर सकते हो, या दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सकते हो, ऐसी एक बार अगर जानकारी उन्हें दे दी, उनका अगर विल पावर बढ़ गया, तो बिलीव माय डियर फ्रेंड्स, ईच एंड एवरी पर्सन आज हर वो चीज कर सकता है जो वो चाहता है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई वुड लव एंड लाइक टू बी दैट जाम्बुवंत इन एवरीवन्स लाइफ। यस, मैंने आज तक एक जाम्बुवंत होने का ही काम किया है, अपने सहकारियों को, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को उनकी असीम शक्तियों को याद दिला के उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनका डेवलपमेंट होने के लिए, उनकी प्रगति होने के लिए। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, आज इस सेशन से द्वारा मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हम में से कोई फेलियर है, निराश है, कुछ प्रॉब्लम है, डर में है, या विश्वास नहीं अपने आप पे, या विश्वास खो चुका है, तो यस, आई अश्योर यू, आफ्टर अटेंडिंग आवर सेशंस, you only will see your face in a mirror and say, yes, मैं ऐसा नहीं था और मैं आज बहुत अलग बन गया हूं, मेरे में क्वालिटी अलग आ गई है, और आप अपने आप को खुद को मोटिवेटेड पाओगे। माय डियर फ्रेंड्स, कोई किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता है,
बट हमारी शक्तियों की जानकारी देके हमें उस शक्तियों का एहसास दिला के हमसे वो कर सकते हैं जो हम चाहते हैं. तो माय डियर फ्रेंड्स, from today onwards, we would come, definitely we will come with a series of information or motivation or knowledge sharing, which will help you all to reach the height, the destination which you all desire and deserve. But one thing which I would like to say, and I used to say in my every training program, wherever I share the training program or deliver the training program, I always like to say, always, हमेशा, प्रत्येक वेळेस सकाळी उठल्यावर आरसा बघा, आरशामधल्या व्यक्तीची ओळख करा आणि त्याला सांगा, येस आय ॲम द बेस्ट, येस आय ॲम द बेस्ट अँड आय विल विन द बॅटल ऑफ माय लाइफ, आई विल विन द बैटल ऑफ माई लाइफ, बिकॉज सेल्फ मोटिवेशन से अच्छा कुछ नहीं होता है. आज के बाद हर एक बंदा, हर एक बंदी अपने आप को आईने में देख के यही बोलेगी, यस आई एम द बेस्ट. टेल योर सेल्फ, अपने आप को बताइए दैट यू आर द बेस्ट. सो फ्रेंड्स, बाउंस बैक एंड विनिंग सेशन का आज का जो शुरुआत है, मैंने आपको एक बेसिक बताया हुआ है. कल से मैं आपके साथ में अलग अलग उसके एग्जाम्पल के साथ आऊँगा और आपको बताऊँगा. मेरा नाम फिर से बताना चाहूँगा, मेरा नाम प्रसन्न अंबेकर. आई एम हेडिंग एन HR डिपार्टमेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन होल्डिंग 25 years of experience under my belt. I am motivational trainer, freelance trainer also, सॉफ्ट स्किल डेवलपर ट्रेनर, कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, इंटरव्यू स्किल, कई सारी बातें मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स को, क्लास लेता हूँ. अभी तो डायरेक्ट क्लासेस पॉसिबल नहीं, तो वेबिनार के थ्रू भी होती है कई सारी क्लासेस. यस, यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई मोबाइल नंबर, बट प्लीज़ अगर मैं मोबाइल आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाता हूँ तो डोंट मिसअंडरस्टैंड, आई ऑलवेज कॉल बैक, बिकॉज अगर मैं बिजी हूँ मीटिंग में और कॉल रिसीव नहीं किया तो डोंट मिसअंडरस्टैंड, बट आई विल कॉल यू बैक फॉर श्योर. बट इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे मिस कॉल लीजिएगा. यस माय डियर फ्रेंड्स, मेरा मोबाइल नंबर है 9422137204. अगेन आई रिपीट, मेरा मोबाइल नंबर है 9422137204, and you can reach me out on my email ID. It is prasanahr@gmail.com. Again I repeat, prasanahr@gmail.com. सो फ्रेंड्स, होप जो मैंने आज शुरुआत की है ई लर्निंग कट्टा के साथ, जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव है. यंगस्टर्स को अपने चाहिए वो टारगेट को अचीव करने के लिए बोलो, या अपने आप को कहीं एक स्टेप पे ले जाने के लिए बोलो, या फिर अपने आप को पहचानने के लिए बोलो. सो आई कॉन्ग्रेचुलेट द टीम ई लर्निंग कट्टा, अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म जो कि हम सब के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना है जिससे हम आज जुड़े हैं, और आज हम आगे बढ़ेंगे और कभी हारेंगे नहीं, जीतेंगे और आगे ही बढ़ते रहेंगे. सो माय डियर फ्रेंड्स, अगेन ऑन अ पॉजिटिव नोट, yes, please attend the series of training sessions which I will going to deliver daily basis or bi-daily basis, whatever it is, as per the time permits. But one thing I assure you, that you will find a new you in you. Are you getting my point? You will find a new you in you. आप अपने आप को, अपने में से नए अपने आप को पहचानोगे, और इसकी पहचान कराने की जिम्मेदारी मेरी है. मेरा नाम प्रसन्न. अगर कोई मुझे पूछता है सर कैसे हैं आप, आई ऑलवेज से आई एम प्रसन्न, ऑलवेज हैप्पी. आई लाइक टू बी हैप्पी एंड शेयर ओनली हैप्पीनेस. सो माय डियर फ्रेंड्स, ऑन द नोट, गुड बाय फॉर द डे and see you soon, probably tomorrow or day after tomorrow. Bye-bye.